Hey there, welcome back. So this is your Ramandeep Singh, and today we're going to be solving this lead code problem. This is lead code medium problem, which is construct string from a binary tree. I hope you are doing lead code and you're getting better in this lead code thing. We're getting stronger and stronger in solving problems. And today we'll be solving this problem, which is given the root node of a binary tree, your task is to create a string representation of the tree following a specific set of formatting rules. तो आपको एक बाइनरी ट्री दी है, ठीक है, एंड यू हैव ऑल्सो लाइक यू हैव बीन गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ठीक है, एंड यू हैव ऑल्सो बीन गिवन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एंड यू आर सपोज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग आउट ऑफ दैट बाइनरी ट्री following a certain set of rules, ठीक है. The representation should be based on pre-order traversal of the binary tree and must adhere to the following guidelines. Node represented, each node in a tree should be represented by its integer value. So these are the rules which I am going to state before you. The first rule is each node in the tree should be represented by its integer value. Then we have parenthesis for children. If a node has at least one child, either left or right, its children should be represented inside parenthesis specifically. तो मतलब ये है कि if any node has a left or right child, its children should be represented within the parenthesis brackets, ठीक है. If a node has a left child, the value of the left child should be enclosed in parenthesis immediately following the node's value. Node की value, फिर parenthesis open, फिर left child की value, फिर parenthesis close. If a node has a right child, the value of the right child should also be enclosed in parenthesis. The parenthesis for the right child should follow those of left child. तो पहले left को parenthesis में enclose करना है, फिर right child को parenthesis में enclose करना है, ठीक है. Omitting any empty parenthesis should be omitted for the final string representation of the tree with one specific exception. तो last final जो representation होगी उसमें parenthesis empty parenthesis नहीं होने चाहिए. Given an exception when a node has a right child but no left child. तो there is a case जब सो देर आर केसेस जब एक नोड का कोई चाइल्ड नहीं है, तो उस केस में तो कुछ नहीं करना, कोई पैरेंथेसिस नहीं डालना. फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड है, वो भी सिंपल है, लेफ़्ट को पैरेंथेसिस में ऐड करो, राइट है नहीं है डजेंट मैटर. फिर राइट चाइल्ड है लेकिन लेफ़्ट नहीं है, उस केस में लेफ़्ट के लिए एक खाली ब्रैकेट रखना है वहाँ पे, ओपन एंड क्लोजिंग बोथ, ठीक है. दैट्स व्हाट दिस एक्सेप्शन सेज. इन सच केसेज यू मस्ट इंक्लूड एन एम्प्टी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड. तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है ये भी बताना है, ठीक है. अगर है तो बताना ही है, नहीं है तो भी बताना है कि हाँ लेफ्ट इसमें नहीं है, ठीक है. देन वी हैव दिस इंश्योर्स दैट वन टू वन मैपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बाइनरी ट्री इज मेंटेन. इससे ये रहेगा ना कि लाइक ये चीज़ क्यों ज़रूरी है. जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर वो पैरेंथेसिस ना हो, है ना, अगर वो एम्प्टी पैरेंथेसिस हम ना रखें फॉर द लेफ्ट चाइल्ड, तो इससे हम डायरेक्ट नोड के बाद उसका राइट चाइल्ड को पैरेंथेसिस में डाल देंगे. बट दैट लाइक मेरे जैसा या लेट्स से कोई बाहर से आके बंदा लेट्स से कोई देखे उस चीज़ को, तो वो तो यही मानेगा. अगर उसको मैपिंग करके मतलब अगर उससे मैं दोबारा बाइनरी ट्री बनाना चाहूँ उस स्ट्रिंग से, तो क्या होगा कि मैं उस ब्रैकेट में पड़े हुए एलिमेंट को जो नोड के बाद ब्रैकेट में लिखा है मैंने, मैं लेफ़्ट चाइल्ड बना दूंगा, हालांकि वो राइट चाइल्ड है इन द ओरिजिनल ट्री. तो ओरिजिनल ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट फेमिलियरिटी या वन टू वन मैपिंग, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वन टू वन मैपिंग, ये मतलब होता है वन टू वन मैपिंग का कि आई कैन ऑलवेज मूव फ्रॉम द बाइनरी ट्री टू द स्ट्रिंग एंड फ्रॉम द स्ट्रिंग टू द बाइनरी ट्री, ठीक है. द पैरेंथेसिस शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है. In summary, empty parenthesis pairs should be omitted when a node has only left child or no children. जब सिर्फ लेफ्ट हो या फिर कोई चिल्ड्रन नहीं हो, अदरवाइज एम्प्टी पैरेंथेसिस डालना है उसमें, ठीक है. उसके अलावा तो एक ही केस बचता है ऑफ कोर्स. तो एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, है ना. ये वाला एग्जांपल नहीं, ये वाला लेते हैं. दिस वन इज़ बेटर. तो देखो एक्सेल ड्रॉ पे चलते हैं. 1 2 3 4. तो लेट्स से वी हैव दिस थिंग. Then we will have 4, ठीक है. सो दिस इज़ द ट्री. अब शुरू करते हैं. देखो इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं. तो हमारे पास ये रहा रूट नोड, इसको मैंने लिख दिया रूट नोड को. फिर मेरे को लेफ़्ट पे जाना है 2 पे, तो इसको मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर उसमें 2 डाला, फिर क्लोज किया, फिर इसका राइट, यही है ना.
हाँ, फिर मैं 2 पे गया, अब 1 से मैं 2 पे जा चुका हूँ, तो लाइक व्हाट आई एम डूइंग, मैंने 1 पे गया, 1 को हैंडल किया, 1 से फिर मैं 2 पे गया, अब मैं 2 को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, 2 को हैंडल कर रहा हूँ। 2 को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 को हैंडल करने के लिए क्या करूँगा, एक मिनट, उसको अभी क्लोज नहीं किया है, जस्ट सेकेंड। मैंने ओपनिंग ब्रैकेट निकाला, मैंने 1 को पहले लिख दिया इस स्ट्रिंग में, फिर मैंने क्योंकि उसका लेफ़्ट चाइल्ड है तो मैंने एक ओपनिंग ब्रैकेट डाला, उसमें वो 2 डाल दिया। देन 2 का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, 2 का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है तो मैंने एक ब्रैकेट ओपनिंग, फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट, और फिर क्योंकि इसका राइट चाइल्ड है 2 का, फिर एक ओपनिंग ब्रैकेट, राइट चाइल्ड, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, और फिर वापस आया, ठीक है, वापस आया 2 पे, वापस आया तो 2 के लिए क्लोज कर दिया, फिर 1 पे आया वापस, फिर 1 का राइट चाइल्ड पे गया, एंड फॉर द राइट चाइल्ड आई अगेन है वो ओपन ब्रैकेट 3, फिर 3 पे गया, 3 का लेफ्ट नहीं है, 3 का राइट भी नहीं है, तो आई ओपन इट। तो ये बन जाएगी इसकी रिजल्टेंट स्ट्रिंग, ठीक है, समझ आया। तो आई एम डूइंग, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग अ डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम नोड नंबर 1। तो 1 आया, जैसे ही 1 दिखा मैंने उसको एज इट इज़ डाल दिया, लेफ़्ट चाइल्ड पे गया, क्योंकि इसका लेफ़्ट चाइल्ड है तो मैंने ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया, और फिर उसके बाद 2 एम्बेड कर दिया, फिर 2 का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, अब क्योंकि 2 का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है तब भी मैंने एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाया और फिर क्लोजिंग लगाया। तो ये पेयर जो है दिस रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड 2। तो ये जो नोड 2 है उसका लेफ्ट चाइल्ड का एब्सेंस को हम इस एम्प्टी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी रिप्रेजेंट दिस इज़ द राइट चाइल्ड विच इज़ दिस 4, और फिर ऊपर गए 4 का तो कोई लेफ्ट राइट है ही नहीं, एंड देन वी मूव बैक एंड देन वी क्लोज दिस ब्रैकेट विच जो हमने यहाँ पे खोला था, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर इसके राइट पे आए, है ना, राइट चाइल्ड है तो मैंने फिर ओपनिंग ब्रैकेट लगाया, फिर 3 लगाया, और फिर मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया। सो दैट्स हाउ आई एम सपोज टू क्रिएट दिस स्ट्रिंग। अब देखो 1-to-1 मैपिंग मीन्स इसका मतलब ये होता है कि मैंने इस ट्री से ये बनाया, अब मैं इस स्ट्रिंग से इस ट्री को बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा, देखो 1 है तो 1 रूट नोड है, फिर एक ब्रैकेट है तो इसका मतलब लेफ्ट में एक चाइल्ड है, ब्रैकेट खुला मतलब लेफ्ट में एक चाइल्ड है, ब्रैकेट के अंदर कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, खाली नहीं है, तो इसका मतलब 2 इज़ द लेफ्ट चाइल्ड। फिर 2 को हैंडल कर रहे हैं, 2 के बाद एक खाली पैरेंथेसिस ऑफ ब्रैकेट है, डैट मीन्स कि 2 का लेफ्ट चाइल्ड एब्सेंट है बट इसका राइट चाइल्ड में 4 है, राइट चिल्ड्रन इज़ 4, ठीक है। नाउ दिस थिंग हैज़ बिन हैंडल्ड। और 1 के बाद ये ब्रैकेट था, दिस इज़ द एंटायर लेफ्ट सब ट्री, सो दिस इज़ द लेफ्ट सब ट्री, ये हैंडल हो गया। एंड देन आई मूव टू दिस राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री मीन्स ये दिस वन राइट चाइल्ड, तो राइट चाइल्ड 3 है मेरा, अब 3 के आगे कुछ नहीं है, सो दिस इज़ द ट्री विच आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। तो नाउ this is the counter question, like if you can do this to this then you should also be able to do this to this, like you have been given a string like this and generate a valid binary tree, that is another similar question to this, ठीक है। तो चलो इसका फंक्शन लिखते हैं आप, है ना, तो डेफ नॉर्मल लिखता हूँ, ठीक है, DFS नोड लिया, तो अगर नोड नन है, नोड इज नन, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न, फिर तो कुछ नहीं करना, नहीं तो करंट वैल्यू को मैं आंसर जो कि ग्लोबल वेरिएबल है उसमें ऐड कर दूंगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग बनाया नोड वैल्यू को और उसको मैंने आंसर में स्टोर कर दिया। अब मैं देखूंगा कि लेफ्ट या राइट चाइल्ड में से एटलीस्ट एक चाइल्ड है या नहीं। इफ नोड डॉट लेफ्ट या नोड डॉट राइट, यहाँ पे बहुत सारे गलती करते हैं, लाइक मैंने भी किया था जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो बट वही है कि यही थोड़ा सा सोचना है कि इवन इफ वन ऑफ द चिल्ड्रन इज प्रेजेंट यू आर ऑलवेज सपोज टू क्या करना है, आंसर में ये ऐड करना है, ओपन पैरेंथेसिस, फिर लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करो, है नहीं दैट डजेंट मैटर, बट कॉल द सेम फंक्शन फॉर द लेफ्ट चाइल्ड, देन
ठीक है। फिर राइट चाइल्ड को हैंडल करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंडल हो ही जाएगा। अगर राइट नॉन नल है तो आंसर में ऐड किया ये DFS, फिर आंसर में ऐड किया, दैट्स ऑल। बस यही करना है, कूल है, यही इसका सही तरीका है। दिस इज़ द राइट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्स जंप टू द कोड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। Let's create that helper function. Self node if node is none, return if node dot left or node dot right, self dot answer ठीक है। बस उसी को कोड किया जो मैंने वहाँ बताया था आपको, ठीक है। आंसर इज़ द ग्लोबल वेरिएबल, तो यहाँ पहले आंसर बनाते हैं सेल्फ डॉट आंसर, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लेट्स कॉल दिस सेल्फ डॉट हेल्पर फॉर द रूट, रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट आंसर, कूल है। तो देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं एंड लेट अस सी। कुछ गड़बड़ है, नोड सही ऐड कर रहा हूँ ना मैं, नोड नहीं ऐड कर रहा, यहाँ भी गड़बड़ है। अच्छा, सेल्फ डॉट आंसर, इसमें नोड ऐड करो, नोड वैल्यू ये भी है, फिर और कुछ तो गड़बड़ नहीं कर रहा ना यहाँ पे। हाँ, सेल्फ डॉट got accepted, let's submit it। ठीक है, got accepted। So this was an easy medium problem and I क्या कहते हैं, I expect you people to just go to this thing। अब इसका आई थिंक अगर आपके पास प्रीमियम है तो यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो मतलब ये उसका दिया ही हुआ है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम स्ट्रिंग। इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू ओपन दिस प्रॉब्लम तो आप पर्सनल अपना एडिटर पे भी इसको लिख सकते हो, है ना। लाइक स्ट्रिंग एक फंक्शन बनाओ, पास दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग, है ना, रैंडम ऐसी स्ट्रिंग जनरेट कर लो, कैसी भी ऐसी रैंडम स्ट्रिंग जनरेट कर लो, है ना, वैलिडेट फंक्शन लगा के कि इफ़ यू हैव अ लाइक बैलेंस्ड स्ट्रिंग फंक्शन बनाओ, ठीक है। रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करो जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, कुछ ऐसे पैरेंथेसिस टाइप डालो उसमें, और फिर उसको वैलिडेट करो और टेस्ट केस जनरेट कर लो, तो 2 4 5 7, ठीक है। एंड देन जस्ट यू कैन पास दिस स्ट्रिंग इन योर सोल्यूशन फंक्शन and try to extract the right binary tree from that particular function, ठीक है। So that's all for this video and that was a very interesting problem and I hope to see you all in my next video. Till then, bye bye.